what you are doing over there and what you are doing. Second year SCAG. 6 days. We are from, IRA, one of the city research institute. I am a plant pathologist. I completed, I retired again working as a embryo scientist. So we will be working on all different diseases on, fungus, bacteria, virus, and bacterioplasma diseases. Characterization, epidemiology, how they spread in nature, and then management. And now, since it is a development era, molecular biology, so with the help of RNA and DNA, we can identify. So we have a very good facility over there. Sometimes, if you get chance, you can visit once, so you will be exposed to. Yes. You are most welcome. Then you can see what is the developments going on. Yes. So from our side again, all the best wishes for your future. And your teachers and professors are very hardworking and they are doing all the best. I think they will be doing best for you. Thank you for your what's there? जो मैथ हमारे होंगे वो 40 बायोलॉजी वाले नहीं. You have done the 12th in biology. Have you done the biology? ये मैथ बायोलॉजी बोल. बायो ग्रुप है मैथ ग्रुप. Without biology, you cannot come with BSc. They are all yes. So you know the photosynthesis? बायोलॉजी वाले तो Respiration. खाना पौधे बनाते हैं, डाइजेस्ट करते हैं. Okay, this is the physiology. Inside. Our colleague is an entomologist. Yeah. He's working at ISR Lucknow. So we are working on insect based shop breathing. Also we are working on biocontrol. Bioagent. Mostly farmer using pesticides. Because a lot of concern because of pollution and insecticides. So everybody is focusing on biological So it medicine. is future scope very good agriculture. BSc करो, MBA करो, नौकरी मिल जाएगी. गवर्नमेंट जॉब के लिए इंतजार मत करो. आप लोग के इंतजार जहाँ कंपनी वाले अच्छा मौका मिले. शुगर मिल वाले तुरंत आपको ले लेंगे. And 10 लाख 15 लाख के पैकेज. And those who are interested in academics, we have a lot of opportunities for higher studies also, India and abroad. So please explore the best possibility and best wishes for the mother. नौकरी के लिए चिंता नहीं करना. गेस्ट हाउस जा रहे हैं? गेस्ट हाउस मैं 10 मिनट बोल इंटरेस्ट कर बन के. I am Dr. Madan Pal. I did the 38 years of my service. Now I am an emeritus scientist. Emeritus means after the retirement, the scientist retires, so he gets some project as a recognition, right? So थोड़ा 10 मिनट में इंटरेक्ट करना चाहता हूँ तो गेस्ट हाउस लंच ही करना ना कोई बात. एज ए BSc AG स्टूडेंट मैं आपको सबसे पहले I want to know from you your motto. Why did you decided to enter in this stream? You must be knowing that what you will be doing after 2 years. You are in second year. So I want to know from the students. You are the faculty. Yeah, corner one, first one. Yeah. What you want, just in brief. Which subject? Why? Why not in pathology? Why not in extension? कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली एग्रीकल्चर IRI, it is headquartered of Indian Council of Agriculture Research. So I am basically my specialization is plant pathology, no diseases. I am working on different diseases now, and now the recent technologies is there with help of DNA, RNA. जैसे हम ब्लड से निकाल के बता देते हैं ना क्या कौन सा पैथोजन है. सेम वी आर वर्किंग विद प्लांट. एक किसी भी पौधे का एक टुकड़ा एक जड़ का मिल जाए, पत्ती का मिल जाए, स्टेम का, वी कैन आइडेंटिफाई द पैथोजन. सो वी आर got very good facilities at our institute at IRI. So
So I am especially working on plant viruses. जैसे हम लोग को इन्फ्लुएंजा अभी कोविड आपने देखा होगा, सेम वायरसेस मतलब नॉट द सेम बट वायरसेस आल्सो अफेक्ट प्लांट्स, cause different diseases. So we are working for know how they can be identified at very early stage of infection और कैसे फैलता है. जैसे कोविड फैलता था हवा में, ये जो प्लांट वायरसेस कीड़े द्वारा, इंसेक्ट द्वारा. दैट्स अ ही स्पेशलाइजेशन इन एंटोमोलॉजी, इंसेक्ट नो. सो वही हम लोग सारा काम करते हैं कि कैसे डिजीजेस बढ़ रही हैं. ये जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है इसका बहुत बड़ा रोल है. वो ह्यूमन डिजीजेज में हो, एनिमल डिजीज में हो, प्लांट डिजीजेज में हो, इस पर भी हम काम कर रहे हैं कि कौन से फैक्टर हैं जिसके नाते कि हमारी डिजीज स्प्रेड हो रही है इन डिफरेंट एनवायरनमेंट, जल में, वायु में, भूमि में. तो इस तरह का काम हम कर रहे हैं. हमारे यहाँ भी सारे जैसे आप कोर्सेज कर रहे हो, हमारे यहाँ भी BSc MSc सारे कोर्सेज हैं, PhD कोर्सेज हैं. तो हम चाहेंगे कि आप लोग का आगे आने बहुत अच्छा भविष्य है आपका. इसके बाद आप आगे फिर यू कैन प्लान. बहुत बच्चे यहाँ से आते हैं आगे PhD MSc करने हमारे यहाँ उड़ीसा में. अब एग्ज़ाम होता है, आप लोग ट्राई करके आएंगे. बहुत अच्छा भविष्य है आपका एग्रीकल्चर में, इंडिया में, अब्रॉड में. और काकुर जो इंडिया गवर्नमेंट बहुत फोकस कर रही है इस समय कि हम किसी को आप देख रहे हैं किसी क्षेत्रों में नए नए स्कीम आ रही हैं ये विद्यार्थियों के लिए, किसानों के लिए, उसका उपयोग आप कर सकते हैं. स्पेशली लेडीज़ के लिए, वीमेंस के लिए बहुत अच्छा मतलब गवर्नमेंट का भी प्रोग्राम है. और फॉरेन के लिए आप अपने उच्च शिक्षा के लिए विदेश जा सकते हैं रिसर्च के लिए. तो बहुत अच्छा करियर है एग्रीकल्चर का. और आज जो हम लोग के ज़माने में उतना नहीं था, लेकिन आज के वातावरण मतलब आज के आधुनिक उसमें बहुत ज़्यादा महत्व है. तो आप लोग को मेहनत से पढ़े. आपके भविष्य के लिए हम लोग की तरफ से मंगल शुभकामनाएं. आपका भविष्य बेहतर हो. जी धन्यवाद. बैठा इंटोमोलॉजिस्ट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च, लखनऊ. आप लोग के जैसे हम लोग भी 85 में 89 में BSc AG किए थे. और हम लोग के साथ ओनली 2 लेडीज थी. आज मैं देख रहा हूँ एटलीस्ट 20% है ना. जितने पॉपुलर, जितना कैडर स्ट्रेंथ है, मीन्स स्टूडेंट स्ट्रेंथ, उसका 20%. तो मीन्स आप लोग इंटरेस्टेड हैं. एग्रीकल्चर में कोई आते नहीं, कौन खुरपी चलाए, कुदाल चलाए. तो अच्छा है, अपॉर्चुनिटी अच्छा है. और आप लोग जहाँ गंगानगर में रिसर्च स्टेशन प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट, बहुत डिफरेंट क्रॉप्स हैं. UG के बाद तुरंत नौकरी मिलेगी आपकी, सब कंपनी आपको ले लेगी. लेकिन अप्लाइड नॉलेज होना जरूरी है. आप जितना थ्योरी पढ़ रहे हो ना, आपका डिफरेंट क्रॉप है आपके रिसर्च स्टेशन. आप वहाँ जाकर देखो, बहुत सारे सिम्टम हैं. डिजीज, इंसेक्ट, न्यूट्रिशन, एफिशिएंसी, सॉइल टाइप, जो कोर्स कर रहे हो वो पूरा है. आप जाकर देखो. फार्म कोई कंपनी पूछेगा आपका क्या अप्लाइड एस्पेक्ट. थ्योरी तो आती है आपकी, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट जरूरी है. नौकरी चाहिए, तुरंत नौकरी मिले. और जहाँ तक बेनिफिशियल इंसेक्ट है, कौन कौन कोर्स कर रहे हो आप लोग? टॉपिक्स क्या है? हनी बी, सिल्कवर्म और ब्लैक इंसेक्ट. और कुछ 1 3 नहीं. बेनिफिशियल इंसेक्ट में क्या क्या सिलेबस है? आप जनवरी से स्टार्ट किया, फरवरी है 24. बेनिफिशियल यही होगा ना. कौन है मिला जी? 3 ही है. नहीं वो पैरासिटामोल ये पैरासाइट भी है जो इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन है. जितना पेस्टिसाइड करते हैं, जितना भी आप खा रहे हो ना, सब जहर खा रहे हो. हम भी खा रहे हैं, आप भी खा रहे हैं. क्योंकि इस एरिया में हम पंजाब से नज़दीक हैं, तो पंजाब में सबसे ज़्यादा इंसेक्टिसाइड हुआ है. उसी के नज़दीक आप अभी बता रहे हैं इमीडा काम नहीं कर रहा है. आज से 5 साल पहले वाइट फ्लाई का कॉटन में इतने इंसेक्टिसाइड डाल दिए, कोई कंट्रोल नहीं कर रहा है. रेसिस्टेंट. तो जो कोर्स है बेनिफिशियल, ये आपके फ्यूचर के लिए, फ्यूचर जनरेशन के लिए. 3 तो है ही बेनिफिट. बहुत सारे बायो एजेंट्स हैं, पैरासाइट, पीडिएटर, पैथोजन, टाइकोडर्मा है, टाइकोग्रामा है, कोटेशिया है, सो मेनी पैरासाइट है. और 3 तो बेनिफिशियल है, हनी बी, सिल्कवर्म और
लैक इंसेक्ट कभी देखें? नहीं देखे। एजुकेशन टूर में ले जाइए रांची, देख भी नहीं पाएंगे, वहाँ सिल्क भी नहीं देख पाएंगे। सिल्क भी नहीं देख पाएंगे, हनी भी तो देख लोगे क्योंकि मस्टर्ड है आपके यहाँ पूरा। तो नौकरी की चिंता नहीं करना है, नौकरी मिलेगी, बस ऑनेस्टली पढ़ाई करो, कट पेस्ट मत करो, मोबाइल से निकाल कर लो, बुक्स पढ़ो, ARS जाओ, PG के लिए दूसरे जगह जाओ, बहुत फेलोशिप बहुत मिलेगा आपको, बहुत फेलोशिप मिलेगा। बहुत अच्छे, जहाँ भी एग्रीकल्चर की संस्थाएं हैं दिल्ली बहुत नहीं मिलेगा। बेंगलोर में है, जहाँ बहुत अच्छी अच्छी संस्थाएं इसमें से हैं। ICAR का पोस्ट मैट्रिक फेलोशिप किसको मिल रहा है? सर एक्रीडेट नहीं है तो अभी अच्छा, ओके। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप बहुत मिलता है ICAR का। स्टूडेंट है हमारा सर एंट्रोपोल में किया है। ओके ओके। अच्छा एंट्रोपोल किया है। अच्छा ठीक है ना, मिलेगा आपको। PG कर लो, बुक से पढ़ो, गूगल से मत पढ़ो। जो सर आपको बता रहे टेक्स्ट बुक अच्छी राइटर को पढ़ो, नॉलेज आएगी। गूगल से ऑथेंटिसिटी नहीं निकालिए, सिर्फ पास कर लोगे नहीं। तो बेस्ट ऑफ लक। हाँ चलिए सबके लिए आप लोग आइए लखनऊ, वेलकम एज ए एजुकेशनल टूर। हमने डॉक्टर साहब से कहा है कि दिल्ली आप लोग का टूर बनाएं। दिल्ली जाओ, बहुत उधर से अच्छा आप लोग एक का बस से आओ, explore- आ जाओ। सर अभी यहाँ पे अपने क्रिप शुगर कैन चल रहा क्रिप है शुगर ना, है, Q1 उनका किया है। रिव्यू करने के लिए प्रोजेक्ट है ना, उसका रिव्यू कर रहे हैं। रिव्यू करने को अगले 5 साल के ऑल लिए फ्रॉम राजस्थान। 50% इसी जोन के हैं, हाँ जी। बाकी रेस्ट ऑफ नहीं अच्छा ये ऊपरी प्लेस मिल जाता है। नहीं अच्छा है इसको। पहले तो डाइवर्सिटी ज़्यादा होती थी, आजकल डाइवर्सिटी नैरो हो गई हाँ, हाँ, जी। क्योंकि कोई एक लोकलाइज हो गया। ज़्यादा तो प्लेस हो